So we are taking some basic level of questions from NCERT. That's a question from NCERT. P of A is given as 0.54, P of B is given as 0.69, P of A intersection B is given as 0.35, and you have to calculate these four results: probability of occurrence of at least one of the two events, probability of occurrence of A but not of B. A intersection B complement means occurrence of A but non-occurrence of B. A complement intersection B, that means probability of non-occurrence of A but occurrence of B, and probability of non-occurrence of both the events. ना A आ रही है ना B आ रही है, but one by one we discuss about those two, those results. This is A intersection B. As far as the first result is concerned, P of A union B, so P of A union B, that will be equals to PA plus PB minus P of A intersection B, and that's a one step problem. PA plus PB minus P of A intersection B. What is that result? कितना आ रहा है? हाँ जी, 0.88. That is P of A union B. That is nothing but the probability of occurrence of both the events. दोनों events का occurrence यहाँ पे आ जाता है. That's fine. Then it is P of A intersection B complement. How can you calculate that? Occurrence of A, that denotes what? Occurrence of A but non-occurrence of B. A होना चाहिए, B नहीं होना चाहिए. शायद बहुत दिक्कत नहीं हो इसको आपको समझने में. Occurrence of A but non-occurrence of B, you are going to calculate it like P of A minus of P of A intersection B. So P of A minus P of A intersection B, that is equals to 0.54 minus 0.35, right? Fine, बढ़िया. Then P of A complement intersection B, occurrence of B but non-occurrence of A. B होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए. तो B होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए. तो definitely P of B में से what is not required, that is simultaneous occurrence of the two. हटा दीजिए उसको. P of B minus P of A intersection B, that would be P of B, which is 0.69 minus of 0.35, and the finally A complement intersection B complement. ना A हो ना B हो. How can you calculate this? Non-occurrence of A as well as non-occurrence of B. ना A हो ना B हो. No, why it is no solution? Why it is no solution? How can you get A complement intersection B complement? That means non-occurrence of both. ना A हो ना B हो. हाँ? In fact, universal set वाली जब बात कर रहे हैं तो I can definitely write 1 minus P of A union B. 1 minus by occurrence of that probability जब मैं लिख रहा हूँ, that's 1. 1 minus P of A union B. A union B denotes what? A union B denotes occurrence of at least one of the two events. दोनों में से कम एक event हो, एक हो A हो B हो या दोनों हो. आप 1 minus जब आप कर रहे हो तो आपने subtract कर दिया, so you will be getting the probability of non-occurrence of both. 1 minus, yes, it is 1 minus 0.88, 0.12. That is the result. Look for a PNC based question. 4-digit number is required. 4-digit number which is greater than 5000 is required, and the digits available to you, जो digits available है, digits available है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are the digits available to you. और आपसे कहा गया नंबर ग्रेटर देन 5000 रिक्वायर्ड है. रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स फिलहाल नहीं है, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है.
अच्छा एक बात बताइएगा, तो जब हम सैंपल स्पेस की बात करें तो सबसे पहले सैंपल स्पेस को देख लें। 4 डिजिट नंबर बनना है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सैंपल स्पेस? हाउ कैन यू राइट 240? सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब हुआ जो जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से वो सारे आ जाने वाले हैं वहां, तो ठीक है 4 डिजिट नंबर बनना है। ये 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं? जो 7 डिजिट्स अवेलेबल है, टोटल 7 डिजिट, ये टोटल 4 डिजिट नंबर जो बन सकते हैं यूजिंग दिस 7 डिजिट्स, जबकि रिपीटेशन नहीं है। अभी फिलहाल जो हम केस ले रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे 7 डिजिट्स आर अवेलेबल, 0 1 2 3 4 5 6 फॉर दिस प्लेस, क्या आ सकता है भाई? 5 क्यों? देखो सैंपल स्पेस जब हम कहते हैं ना, तो सैंपल स्पेस का मतलब समझो, सैंपल स्पेस में जितनी जो भी पॉसिबिलिटी है सबको लिखना होगा। जो आप बोलना चाह रहे हैं वो तो फेवरेबल स्पेस होगी। ग्रेटर देन 5000, तो जो आप ग्रेटर देन 5000 लिखोगे दैट विल बी द फेवरेबल स्पेस। सैंपल स्पेस तो ऑल टोटल जो भी पॉसिबिलिटीज है उन सबको लिखने वाले हैं ना आप। तो यहां पर जब आप ऑब्जर्व करोगे तो इस प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, 4 डिजिट नंबर बनना है। तो इस प्लेस पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 वेज से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं आप, नॉट 5। अगेन 0 कैन कम एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे 0 आ सकता है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, then 5 and then 4. It is going to be 6 into 6 into 5 into 4. Okay fine, ठीक है, that is a sample space। लेकिन अब आपसे बात की गई कि what is going to be the favorable space। आपको जो नंबर रिक्वायर्ड है वो नंबर रिक्वायर्ड है 5000 से ग्रेटर देन 5000। तो फेवरेबल स्पेस जब मैं लिख रहा हूं, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर, फेवरेबल स्पेस। फेवरेबल स्पेस के केस में 5000 से ग्रेटर है। अब यहां पे बात कर सकते हैं हम कि फॉर दिस प्लेस 5 and 6 बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस प्लेस। दिस प्लेस मींस यूनिट 10 प्लेस, 100 and 1000 प्लेस पे 5 या 6 दोनों में से कुछ भी आ सकता है। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, राइट। जहां तक कि नेक्स्ट की बात करें तो ठीक है, एक प्लेस आपके फिल हो गई, एक नंबर एक डिजिट ऑक्यूपाई हो गई, 1 2 3 4 5 6 6 5 and 4, यस ठीक। दैट विल बी 2 into 6 into 5 into 4। कितना बन रहा है ये? ओ एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे जब हमने कहा है तो ये तो होगा, ये ग्रेटर देन 5000, ये ग्रेटर देन 5000 हो गए। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो सॉल्व कर दिया मैंने ग्रेटर देन 5000 सॉल्व कर दिया, तो पहले उसको लिख देता हूं मैं, 2 into 6 into 5 into 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5000, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 into 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाय 6 into 6 into 5 into 4। कितना आ रहा है ये? 1/3। अब हम यहां पर बात कर ले, जो क्वेश्चन था कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 बट डिविजिबल बाय 5। सैंपल स्पेस तो सेम ही रहेगी, सैंपल स्पेस इज ऑफ 720। अब आपको रिक्वायर्ड है फेवरेबल स्पेस, ये था फॉर ग्रेटर देन 5000। अब हम बात कर रहे हैं डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल के लिए फेवरेबल स्पेस। ये एक सवाल होगा आपका, ठीक है। सेम डिजिट्स आर गिवन, सैंपल स्पेस रिमेन सेम 720, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल है तो यार यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। फेवरेबल स्पेस फॉर डिविजिबल बाय 5, 1 2 3 4, यस 5 से डिविजिबल की अगर मैं बात करूं
if I fill this place, unit place by 5, 5 can be kept here by one way. 5 को यहाँ पर एक तरीके से रख सकते हैं आप. 5 को उधर रखेंगे तो एक बात तय है कि 0 कैन नॉट कम एट दिस प्लेस. 0 इस प्लेस पर नहीं आ सकता. 0 कैन नॉट कम एट दिस प्लेस. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 ऑलरेडी रख चुके हो. 0 यहाँ नहीं आ सकता. 2 डिजिट्स कम कर लिए आपने. 5. अभी 2 डिजिट्स आपकी यहाँ पे बुक हो गई. ठीक है. 5 and 4. 5 1. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे चाहिए डिविजिबल बाय 5. तो डिविजिबल बाय 5 में यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 0 और 5. यूनिट प्लेस पर या तो 0 आएगा या 5 आएगा. तो ये हो गया 25. बट एट द सेम टाइम से उसको डायरेक्ट मत लिख देना दोस्तों. यू हैव टू टेक केयर कि 5 से डिविजिबल तो तब भी होगा जब यूनिट प्लेस पर 0. बोले सर 2 केस बनाने की क्या जरूरत थी. आप समझते हैं 2 केस बनाने की क्या जरूरत थी. अगर मैं 0 भी यहीं पर ले लूंगा तो मुझे पता है कि 0 में परेशानी है. 5 यूनिट प्लेस पर लेने पर 0 कैन नॉट ऑक्यूपाई द 1000 प्लेस. लेकिन इफ आई कीप 0 एट यूनिट प्लेस देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर द 1000 प्लेस. परमिटेशन कॉम्बिनेशन की बातें जो इसी सीजन में इसी सेशन में आपने पढ़ा है. ठीक है ना. तो 0 कैन बी केप्ट हियर बाय वन वे. 0 बुक हो गया. नाउ 6, 5 and 4. That will be 6 into 5 into 4 into 1. That is coming as what? 120. Oh yes, greater than 5000. तो जब हमने यहां पर ये क्या हो गया. ये कौन सा केस हो गया. ये डिविजिबल बाय 5 हो गया. 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 बट 5000 इज मिसिंग. चलो ठीक है. अरे हाँ, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया. डिविजिबल बाय 5 एंड 4 डिजिट नंबर. एक में 3 हो गए यार. बढ़िया, अच्छी बात है. 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5. क्या हो गया इसका फेवरेबल स्पेस क्या हो गया. बोलो. फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस. That will be 220 divided by 720. चलो, जो भी आ रहा है बढ़िया आ रहा है. ये हुआ पहला सवाल. दूसरा सवाल. अब तीसरे सवाल पे आते हैं. अब याद दिलाना. अब हमें रिक्वायर्ड है 4 डिजिट नंबर जो कि ग्रेटर देन 5000 हो और डिविजिबल बाय 5 भी हो. अच्छी बात है. 5000 से बड़ा भी है और डिविजिबल बाय 5 भी है. फेवरेबल स्पेस लिख रहे हैं इसके लिए. सैंपल स्पेस रिमेन सेम. ये एक सवाल, ये दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल. क्लैरिटी रहे. बढ़िया. सोच समझ के. 5000 से ग्रेटर होना चाहिए. तो ग्रेटर देन 5000. ग्रेटर देन 5000 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यार यहां तो एक गड़बड़ है कि ग्रेटर देन 5000. तो इसमें भी एक परेशानी है. क्या परेशानी है. केसेस तो बनाना पड़ जाएंगे यहां पर भी. क्या लगता है आपको. बनाना पड़ेंगे. इफ 5 इज टू बी, भाई इस प्लेस पर 5 या 6 आ सकता है. ठीक है ना. लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि 5 की 5 ईयर, अगर मैं इस प्लेस को 5 से फिल करता हूं तो इस प्लेस पे फिर कंपलसरी 0 ही आना चाहिए. मतलब 1000 प्लेस पर अगर 5 आता है तो वो 5000 से ग्रेटर नंबर होगा. और बट डिविजिबल बाय 5 भी होना है तो दिस 1000 प्लेस मस्ट बी फिल्ड बाय 0. तो 0 कैन बी केप्ट हियर बाय वन वे. 5 कैन बी केप्ट हियर बाय वन वे. अब बाकी दोनों डिजिट्स का हिसाब किताब कर लेते हैं. 2 डिजिट्स आपकी ऑक्यूपाई हैं. ठीक है. 5 and 4. परफेक्ट. दैट विल बी 1 into 5 into 4 into 1. That will be equals to 20. At the same time, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया. होने दीजिए. अच्छी बात है. कोई बात नहीं. सीखना है आपको. ठीक. इफ दिस प्लेस इज टू बी फिल्ड बाय 6, क्योंकि 5000 से बड़ा है तो 5 आएगा 6 आएगा. 5 के केस में तो यूनिट प्लेस पर 0 ही आ सकता था और कुछ नहीं आ सकता था. बट फॉर दिस 6 इज टू बी केप्ट एज द एट द 1000 प्लेस. तो 5000 से ग्रेटर होगा.
यूनिट प्लेस पर क्या आ सकता है? क्यों 0 5 में क्या परेशानी है? 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, आने दीजिए, क्योंकि 6 ऑलरेडी बुक है तो कोई टेंशन हमें है नहीं कि दो अलग अलग केस बनाए जाए। तो 0 कैन कम हियर एज वेल एज 5 कैन कम हियर, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज, 6 कैन बी केप्ट हियर बाय 1 वे। 2 डिजिट्स आपकी बुक हो गई, 2 डिजिट्स बुक हो गई, तो रिमेनिंग 5 एंड, बिल्कुल ठीक। So it is going to be 1 into 5 into 4 into 2, 40। दोस्तों क्या हो जाएगा? फेवरेबल स्पेस 60 डिवाइडेड बाय 720, तो 60 डिवाइडेड बाय 720 दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट फॉर। अब मैं सबके अलग अलग क्लियर कर देता हूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन से जो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन 1 सॉल्व करना चालू किया था, बट वी हैव सॉल्व्ड हियर 3 क्वेश्चंस इन फैक्ट, और तीनों की बात कर लेते हैं। दैट रिजल्ट फिलहाल यहाँ पे 60/720। फाइन, बढ़िया। देखिए द क्वेश्चन इज, तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग डिस्क्राइब कर दूं। पहली बात तो ये कि 4 डिजिट नंबर बनना है, जो डिजिट्स अवेलेबल है 0 1 2 3 4 5 6। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं है। तो 0 1 2 3 4 5 6 दीज आर द 7 डिजिट्स गिवन टू यू, 7 डिजिट्स गिवन है। सैंपल स्पेस 4 डिजिट नंबर बनना है, चाहे जो भी कंडीशन हो। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर, सैंपल स्पेस तो सबके लिए एक जैसा ही रहेगा। 4 डिजिट नंबर बनना है। 0 कैन नॉट कम at this place, at this place means 1000 place पे 0 नहीं आ सकता, otherwise it will become a 3 digit number. So this place can be filled by, 1000 place can be filled by, excluding 0, sorry, 6 digits are there, 6. Now 0 can also come here, so 6, then 5 and 4. Yes, sample space is becoming 720. अब पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं जो रिक्वायर्ड है हमें, और वही है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट है ना, which can be formed which is greater than 5000, 5000 से बड़े, डिविजिबल बाय 5 वगैरह कुछ भी कंडीशन नहीं, क्लियर कर दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 सवाल हो गए। तो जो पहला सवाल हमने सॉल्व किया है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, लिख सकते हैं आप इसको। पहला सवाल इसमें 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। सो 5000 से ग्रेटर है, इसका मतलब जो 1000 प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड बाय 5 और 6, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज। ठीक है, 5 या 6 आ गया, बाकी प्लेसेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लेस ऑलरेडी आपकी बुक किया, एक डिजिट आपका बुक हुआ, रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 देन 5 एंड देन 4, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स नॉट देयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5000, 4 डिजिट नंबर विच इज ग्रेटर देन 5000, 2 into 6 into 5 into 4, that is a favorable space divided by the sample space 1/3। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वो ये सॉल्व किया कि 4 डिजिट नंबर, और कैसे 4 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 एंड 4 डिजिट नंबर। अब 5 से डिविजिबल है, कंस्टेंट नहीं कुछ भी है ना, बस केवल यह है कि 4 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल कब होगा? जब यूनिट प्लेस पे 0 होगा या यूनिट प्लेस पे 5 होगा। लेकिन आप समझदार हैं, आपको पता है कि यार इस टाइप के केसेस 2 केस बनाना पड़ेंगे। द रीजन इज इफ 5 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस देयर इज अ कंस्टेंट फॉर 1000 प्लेस आल्सो, एंड इफ 0 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस देयर इज नो कंस्टेंट फॉर द 1000 प्लेस। तो बेहतर होता है कि हम उसको दोनों को इंक्लूड ना करें, दोनों को सेपरेट सॉल्व करते हैं ना। So 5 can be kept here at the unit places by 1 way, 0 cannot come here, so remaining 5 digits can be kept here। अभी 0 भी आ सकता है, 5 4 that is 100, but then we have taken the case unit place को 0 से fill किया, there is no condition or constraint for the 1000 place। 6 5 4 1 120 and 100, total favorable space is coming of 220 divided by 720, right। और तीसरा सवाल, अब जो तीसरा सवाल इसी में लिया है कि अगेन 4 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड है, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 एज वेल एज डिविजिबल बाय 5। 4 डिजिट नंबर है, 5000 से बड़ा है और डिविजिबल बाय 5 है, तो 5000 से बड़ा है और डिविजिबल बाय 5 भी है। तो यहां पे हमने रखा कि यार इफ 1000 प्लेस पे 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, तो 1000 प्लेस को मैंने 5 से फिल किया, तो यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा क्योंकि डिविजिबल बाय 5 चाहते हैं आप, राइट। तो 5 कैन बी केप्ट एट द 1000 प्लेस बाय 1 वे, 0 कैन बी केप्ट ऑन द यूनिट प्लेस बाय 1 वे, एंड रिमेनिंग 5 डिजिट्स 5 एंड देन 4 20। देन इफ आई कीप 6 एट द 1000 प्लेस, तब भी 6000 वाला नंबर होगा जो 5000 से बड़ा है, देन इन दैट केस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 0 और 5, हमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि डिविजिबल बाय 5 होना है।
0 आ जाए या 5 आ जाए। बोले सर इसका दिक्कत, कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 6 बैठा है, ठीक है। तो दिस यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 0 और 5 बाय 2 ways, एंड देन 5 and 4। दो डिजिट्स तो आपकी ऑलरेडी बुक हो गई, देन 5 and 4 इट इज कमिंग एज 5 into 4 into 2 एज वेल एज 5 into 4, दोनों का सम किया, दैट विल बिकम द फेवरेबल स्पेस। फेवरेबल स्पेस अपॉन सैंपल स्पेस दैट इज 60 अपॉन 720। क्लियर है? तो 3 सवाल हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। डिजिट्स जो गिवन है आपको 0 1 2 3 4 5 6। पहला सवाल 4 डिजिट नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। प्लीज नोट डाउन दिस ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी तो समझ में आ जाए, बाद में गायब हो जाए, पता नहीं क्या क्या लिखा था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। पक्का? दूसरा सवाल, find the probability of getting a 4 digit number which is divisible by 5। तीसरा सवाल, find the probability of 4 digit number greater than 5000 and divisible by 5 also। The case is of repetition of the digits not there। Clear? Now let's take those same 3 questions but with a different condition, and with a different condition that means repetition of digits allowed here, repetition of digits allowed। 4 डिजिट नंबर बनना है विद डिफरेंट कंडीशंस, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहली बात, 4 डिजिट नंबर बनना है, सैंपल स्पेस डिस्कस कर लेते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर देयर, तो अब की बार प्रीवियस केस से चेंज होगा। प्रीवियस केस में रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स वेर नॉट देयर, तो सैंपल स्पेस जब मैं लिखने वाला हूं, सैंपल स्पेस इज गोइंग टू बी फॉर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर बनने की सैंपल स्पेस, जबकि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है, राइट। दिस प्लेस, फॉर दिस प्लेस 0 is not eligible, 0 cannot come here, 0 cannot come here, but remaining 6 digits can come here, ठीक है। Now 7, अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी 0 भी आने दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, all 7 digits are eligible, the reason is repetition is allowed here। 6 7 7 and 7, 6 into 7 cube, that is becoming the sample space, या sample space हो गया, ठीक। Now the first question, can you tell me the first question? 4 digit number, 4 digit number and greater than 5000, 5000 से greater 4 digit number required है, केवल बस इतना है। probability of getting 4 digit number which is greater than 5000 formed by these 7 digits when repetition of digits is allowed there। आप फेवरेबल स्पेस लिखते हैं दोस्तों जरा, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज देयर ग्रेटर देन 5000, दोस्तों बताइए 1000 प्लेस 2, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। 5000 से ग्रेटर है तो 5 आएगा, 6 आएगा। 5 या 6 लिखता हूं इसको तो बेहतर होगा। यस, 100 प्लेस, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड देयर, आने दो सब कुछ। 10 प्लेस, चेक कर लीजिए, दैट फेवरेबल स्पेस इज गोइंग टू बी 2 into 7 क्यूब, -1 क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज देयर और ग्रेटर देन 5000 रिक्वायर्ड है, तो 5000 बन जाएगा यहाँ पे एक बार। तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग। -1 बिकॉज -1 इज फॉर 5000 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, एक्सक्लूडिंग 5000।
फेवरेबल स्पेस डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस. बढ़िया. Yeah, the second question. What is that second question? 4-digit number. And divisible by 5. Yes. 5 से divisible required है हमें. 4-digit number. 5 divisible के केस में यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 0 और 5. यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है या 5 आ सकता है, और आप जानते हैं यूनिट प्लेस पर अगर 5 आता है तो 1000 प्लेस पर 0 नहीं आ सकता. तो विल हैव टू टेक सेपरेट केसेस, लेना पड़ेंगे आपको. सो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5, तो 0 कैन नॉट कम हियर. तो 5 इज कैन बी केप्ट हियर बाय 1 वे. ठीक है. 0 इज नॉट हियर. 5 आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. 0 इज नॉट हियर. 6, देन all 7 digits available. All 7 digits available. 6 into 7 square into 1 divided by the favorable space, sorry, divided by the sample space, which is 6 into 7 cube, that is there. लो sorry, one case is missing. अभी इसमें प्लस करना होगा मुझे. क्या करना होगा दोस्तों? Unit place. Unit place is to be filled by 0, which can be kept here by 1 way. There is no restriction for the 1000 place. जो भी आ रहा है आने, सॉरी, 0 अगर यहाँ पर आया है तो 0 को मैंने फिक्स किया, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स हैं. तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स है तो इस प्लेस पे 0 तो फिर भी नहीं आ पाएगा. 0 कैन बी केप्ट हियर बाय 1 वे, लेकिन अगर मैंने रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स के 7 नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि 7 अगर लिखूंगा तो परेशानी ये है कि 0 आ जाएगा यहाँ पर. अरे 0 यहाँ पर आते ही 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, इसलिए 0 को हटाना पड़ेगा हमें. एक्सक्लूडिंग 0 नहीं आएगा. 7 7 6 into 7 square into 1. 4 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 है. दोस्तों इसमें कुछ -1 नहीं, यहाँ पे 5000 से बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमने. ये रिजल्ट हो जाएगा. इस केस में फेवरेबल स्पेस होगी 2 times 6 into 7 square into 1 divided by the sample space. बड़े अच्छे सवाल हम डिस्कस कर लिए. तीसरा सवाल, फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 and divisible by 5 also. 5 से भी डिविजिबल. अब सारी बात है. If I keep 5 at the 1000 place, 5000 वाला नंबर अगर मैं बना रहा हूं, दो केस बना के बात कर लेते हैं, बेहतर होगा. 5 कैन बी केप्ट हियर बाय 1. 5 कैन बी, हाँ, 5 कैन बी केप्ट देयर बाय 1 वे. डिविजिबल बाय 5 इज रिक्वायर्ड. 5 से डिविजिबल होना चाहिए. सो यूनिट प्लेस पर 0 आ सकता है एज वेल एज 5 आ सकता है. रिपीटेशन है तो कोई परेशानी नहीं है, बट डिविजिबल बाय 5 चाहते हो आप तो यही दो ऑप्शंस हैं. देन बोलिए 7 and 7. 1 into 7 square into 2. बोलिए. If I keep 6 here, 6 at the 1000 place, since 6 can be kept here by 1 way. Again कोई परेशानी नहीं है. For the unit place 0 as well as 5 both are eligible there. ठीक. 7 and 7, that will be equals to 1 into 7 square into 2. थर्ड का ही रिजल्ट की बात कर रहे हैं अपन. अब ये देख लें, कुछ सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना होगा इसमें से. 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 डिविजिबल बाय 5. हाँ वही देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर जब हम 5 लिख रहे हैं तो 5000 वुड बी देयर. ठीक है ना, यहां पर कोई परेशानी नहीं है.
तो हम लिखेंगे इसको, इनफैक्ट क्लैरिटी रहे, 7 स्क्वायर फेवरेबल स्पेस, 7 स्क्वायर इंटू 2 -1, ये -1 फॉर 5000 प्लस 7 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 क्यूब, ये रिजल्ट होगा। आया क्या समझ में? रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड देयर, पीएनसी का अच्छा रिवीजन हो गया आप लोग के लिए। तीनों सवाल यहाँ पे डिस्कस किए। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 4 digit number divisible by 5 and 4 digit number which is greater than 5000 divisible by 5. Now the question is based on the playing cards. A deck of 52 cards, 52 cards हैं आपके पास, 52 playing cards are there and 6 cards are selected at random out of the deck of the playing cards, या deck of cards. 6 cards are selected, या 6 cards taken out of 52 playing cards. Probability required है, first case, 4 queens are, all queens are there. All queens are there in the draw. Second one, 2 queens in draw. At least 1 king in the draw. 6 cards are selected या 6 cards are taken out of the deck of playing cards. और ये 3 बातों की probability required है. First, all the queens are there in the draw. Second, 2 queens are there in the draw. And third is at least 1 king is already drawn in the draw. To solve these 3 questions, first of all we discuss about the sample space of that. Sample space अगर लिखूंगा मैं तो 6 cards are drawn out of the 52 cards, तो sample space is clearly 52C6 without any doubt. 52 cards है और 52 cards में से 6 cards आपने select किए. For the first one, all queens are there in the draw. All queens are there in the draw, that means 4 queens are there in the playing cards. तो 4 queens हैं तो चारों queens आ जाना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि चारों queens तो आ जाना चाहिए लेकिन टोटल 6 कार्ड्स आपको ड्रॉ करना है. तो चारों क्वींस भी अगर आती हैं तो 2 तो रिमेनिंग दूसरे कार्ड जाना है, ये बात भी तय. और 4 क्वींस आर देयर तो रिमेनिंग दूसरे कितने कार्ड्स होंगे? तो रिमेनिंग कार्ड्स आर 48 कार्ड्स, है ना. तो यहां पर जब मैं फेवरेबल स्पेस लिखूंगा, दैट फेवरेबल स्पेस वुड बी ऑल क्वींस आर देयर 4C4 इनटू, चारों क्वींस तो हो गई, इनटू रिमेनिंग कार्ड्स 48 कार्ड्स, और 48 कार्ड्स में से रिमेनिंग कोई भी 2 कार्ड्स आप ड्रॉ कर लीजिए. 4C4 इनटू 48C2 डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस 52C6. फॉर द सेकेंड वन, फेवरेबल स्पेस, तो फेवरेबल स्पेस अगर मुझे लिखना है, नाउ सेकेंड वन, 2 क्वींस आर देयर इन द ड्रॉ. अब ये 2 क्वींस आर देयर मतलब इसको ये मान के चलेगा एग्जैक्टली 2 क्वींस की बात की गई है. एग्जैक्टली 2 क्वींस आर देयर इन द ड्रॉ. तो पहले तो आपको 2 क्वींस सिलेक्ट करना होंगी. दोज आर गोइंग टू बी 4C2 इनटू रिमेनिंग जो कार्ड्स हैं, दोज आर रिमेनिंग 4 कार्ड्स आर देयर, दोज आर गोइंग टू बी 48C4 divided by the sample space which is 52C6. और तीसरा केस, probability for the favorable space, because sample space is same for favorable space. At least 1 king is drawn in the draw.
कम से कम एक किंग है, कम से कम एक किंग है तो आपको एटलीस्ट वन किंग, तो इनफैक्ट देर आर गोइंग टू बी 4 केसेस देयर, 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग्स एंड 4 किंग्स। पहले तो मैं दोनों तरीके से, विल बी ऑल्सो किंग फॉर अल्टरनेटिव वे, 1 किंग, 2 किंग्स प्लस 3 किंग्स प्लस ऑल 4 किंग्स। जब एक किंग की बात की जाएगी, 4c1 इंटू 48c5 प्लस 4c2 इंटू 48c4, 4c3 इंटू 48c3 प्लस 4c4 48c0। एक भी नहीं सिलेक्ट करने का भी एक तरीका है, डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस 52c6। अब आप मुझे एक और बात बताइए, क्या इसके लिए अल्टरनेटिव वे हो सकता है? 1 किंग, भाई एटलीस्ट 1 किंग इज ड्रॉन इन द ड्रॉ, तो 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग और 4 किंग सबका समेशन कर दिया आपने। अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव वे हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस क्या कर सकते हैं आप, एक भी किंग आपने ड्रॉ नहीं किया, तो टोटल वेज कितने हैं इसमें अल्टरनेटिवली? टोटल वेज टू ड्रॉ 6 कार्ड्स, क्या बोल रहे हैं? 48c5, ओके, अच्छा सॉरी 48c2, चारों किंग हैं तो रिमेनिंग 2 कार्ड्स तो दूसरे आना ही है। अल्टरनेटिव है चाहता हूं मैं 1 माइनस, एक्चुअल में फेवरेबल स्पेस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस को करने वाले हैं। देखो टोटल, देखो सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ द 52, 52c6 है। माइनस क्या करना होगा मुझे? माइनस ऐसे तरीके सब्ट्रैक्ट करना होंगे जिसमें एक भी किंग नहीं आ रहा है, रेस्ट नहीं, माइनस वो सारे वेज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है जिसमें एक भी किंग नहीं आ रहा है। एक भी किंग नहीं आ रहा है तो उसमें एक भी किंग नहीं आ रहा है मतलब 4c0 इंटू 48c, सारे दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं 6। इस केस में जब प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, दैट वुड बी 52c6 माइनस 4c0 into 48c6 divided by 52c6, 1 minus 48c6 divided by 52c6, ये रिजल्ट, ये फेवरेबल स्पेस डिवाइडेड बाय 52c6, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 किंग की बात की गई तो ये चारों केसेस को ऐड करेंगे तब भी रिजल्ट मिलेगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें 6 कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, एक भी किंग नहीं आ रहा है उसमें से, तो विल बी गेटिंग एटलीस्ट 1 किंग देयर इन द ड्रॉ, राइट? सो अगेन a question based on the playing cards. 4 cards are drawn from a deck of well shuffled deck of playing cards. 52 cards are there or well shuffled cards are there. 4 cards are drawn and in fact I have given 6-7 questions are there. So one by one we'll be solving all 7 questions. सबसे पहली बात तो ये, if I talk about the sample space of that, तो sample space में out of 52 cards I have to select any 4 cards. So if I have to write the sample space for all these 7 questions, because in all 4 cards की बात की गई है, 4 cards are drawn, 52c4, that is simply the sample space, 52 factorial upon 4 factorial, 48 factorial. Fine, solve कर लेंगे आप. Now the first one, and again I will be writing just the favorable space. एक एक लाइन का कार्यक्रम है. Favorable space. The question is that all 4 cards are of same suit. क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, या तो 4 cards are drawn and उसने कहा है all 4 cards are of same suit. यार हाँ, मैंने आपको बताया ना इसलिए कि
डायमंड्स, हार्ट्स, क्लब एंड स्पेड्स, या तो चारों कार्ड्स डायमंड्स 8, हार्ट्स लाल पान, स्पेड्स हुकुम या काला पान, और क्लब चिड़ी चिड़ी। तो बोलो फेवरेबल स्पेस, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। इसका मतलब है या तो चारों कार्ड्स डायमंड के होंगे या फिर प्लस डायमंड्स के हैं या हार्ट्स के हैं या फिर स्पेड्स के हैं या फिर क्लब्स के हैं। यस, दैट इज द मीनिंग। 4 into 13C4 डिवाइडेड बाय 52C4। आपने क्या सोचा था? यही सोचा था? नहीं, एक ही बार तो नहीं जम पाएगा। ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। हाँ, इसका मतलब है चारों पॉसिबिलिटी है ना, क्लब, स्पेड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। सेकंड, ये भी इंटरेस्टिंग है। ऑल 4 कार्ड्स आर सेम नंबर्स। सेम नंबर्स है ना, नंबर्स कहा गया है। अब कितने नंबर्स की बात होगी? नंबर्स बोलो जरा। 2, 3, 4। भाई ये सारे के सारे जो हैं वो 2 के कार्ड्स हो जाएं, सारे 3 के कार्ड्स हो जाएं, 4 के कार्ड्स हो जाएं, 5 के कार्ड्स, 6 के कार्ड्स, 7 के कार्ड्स, 8 के कार्ड्स, 9 के कार्ड्स एंड देन 10 के कार्ड्स। और तो नहीं है ना? नहीं है। ओके, सो इट इज बिकमिंग 2, 2, 2, 2, देन 3, 3, 3, 3। सेम नंबर्स एक्चुअल में कहा है उसने, नंबर सेम रहे, तो इट इज गोइंग टू बी 9। 2 हो, सारे नंबर्स 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 9C1 नहीं 9C1 नहीं दोस्त, 9 ही केस हुए ना टोटल। ये फेवरेबल स्पेस में आप क्या देख रहे हो? फेवरेबल स्पेस के केस में ऐसा, ये देखो देखो देखो, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम नंबर, 2, 2, 2, 2। सभी में दुक्की आ गई है सब, ठीक, लाइक दिस। ठीक, तो ऐसे कितने सारे केस होंगे? तो ऐसे कितने केस होंगे? तो दीज आर द 9 केसेस देयर डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। थर्ड वन, आपकी बात डिफरेंट है मामला। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, क्या मतलब हुआ? एक स्पेड से, एक क्लब से, एक डायमंड से, एक हार्ट से, प्लस 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 मल्टीप्लीकेशन। 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, राइट। एक एक कार्ड सब जगह से आ रहा है, चाहे वो ईंट हो या लालपान हो या हुकुम हो या फिर चिड़ी हो। फोर्थ वन, डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस। फोर्थ के अकॉर्डिंग ऑल कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर बोले सर, सेम कलर का क्या चक्कर है? ये सेम सूट, कलर की जब बात की जाएगी तो रेड कलर और ब्लैक कलर। तो रेड कलर के में 2 कार्ड्स होंगे, हार्ट्स एज वेल एज डायमंड्स। 26 रेड कलर कार्ड्स हैं और 26 ब्लैक कलर कार्ड्स हैं। ऑल द कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। 2 पॉसिबिलिटी हैं, 26C4, या तो सारे रेड हैं या फिर सारे ब्लैक हैं, डिवाइडेड बाय द सैंपल स्पेस 52C4। फिफ्थ, 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स, 2 रेड है और 2 ब्लैक है। यस, 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 26C2 इंटू, ठीक है, 26C2 इंटू 26C2। 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक। एक एक चारों होना चाहिए, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, जो ही है। 4C1 एंड 4C1, यस, एंड डिवाइडेड बाय 52C4। बढ़िया, और बताइए। 2 किंग्स एंड 2 क्वींस, 4C2 इंटू 4C2 डिवाइडेड बाय 52C4।
आसानी से बात बन जाती है। अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट्स इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 3 डाइस, in a single throw of 3 dice you have to require that the probability of getting a total of 6 is required, probability of getting at least 6 is required and probability of getting at most 6 is required. ये तीन बातें, at least 6, at most 6 and a total of 6. सबसे पहली बात तो 3 dice are thrown या single throw of 3 dice या 3 dice are thrown simultaneously, जो भी आप कहें. Can you tell me the sample space for that? 3 dice are thrown. 216. 6 into 6 into 6. 6 cube which is 216. ठीक है. 216. अब total of 6 कहाँ दिक्कत है? Total of 6 में कैसे दिक्कत होती है? Total of 6. 3 dice are thrown simultaneously and sum appearing on the faces is becoming 6. कई सारे सवाल आपने पीएनसी के दौरान भी बनाए. तो टोटल ऑफ 6 की जगह मैं बात करूंगा. हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट टोटल ऑफ 6? केसेस बना लेते हैं. 1 1 देखो, वी स्टार्ट विथ लार्जेस्ट नंबर को फिक्स किया. 6 रख नहीं सकते, 5 हो नहीं सकता क्योंकि मिनिमम 1 1 तो लेना ही है. 4 के साथ में 1 1 4 1 1 बट 4 1 1 विल बिकम 6. बट इसको अरेंज कर लीजिए साइमल्टेनियसली. 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल काम आपका आसान कर देता है. 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 3. आपकी बुक्स में इट इज बीन मेंशन्ड एज 4 1 1 1 4 1 एंड 1 1 4. हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं. 4 1 1 हो गया. देन व्हाट? देन 3 3 3 2 1. If you observe 3 2 1, there is no need to write 6 different cases because 3 2 1 can be arranged by 3 factorial which are 6 ways. And then 2 2 2 1. So in all to get a total of 6, favorable space is coming as 6 plus 3 9 plus 1 10. ठीक बोल रहे हैं आप लोग. फेवरेबल स्पेस इज 10 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 6, टोटल ऑफ 6 that is equals to favorable space that is 10 divided by 216 5 upon 108. That is probability of getting total of 6. ठीक. अब ये कहा गया एटलीस्ट 6, टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 एंड एटमोस्ट 6. एटलीस्ट 6 का मतलब समझ रहे हैं आप? एटलीस्ट 6 के केस में तो 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 18 काफी दिक्कत वाला कार्यक्रम है. एटलीस्ट 6 आप समझ रहे हैं क्योंकि एक एक केस कैलकुलेट करना काफी टाइम लगने वाला है. ऑलरेडी आपने किया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के दौरान. टोटल ऑफ एटलीस्ट 6. इंस्टेड ऑफ दैट हम एक काम करते हैं, वी थिंक अबाउट टोटल ऑफ एटमोस्ट 6. टोटल ऑफ एटमोस्ट 6. फर्स्ट वी थिंक अबाउट दैट, फिर सोचते हैं कुछ किया जा सकता है क्या. एटमोस्ट 6 के केस में हाउ मेनी केसेस आर देयर? मैक्सिमम 6, 3 4 5 एंड 6. 6 के केसेस तो अभी अभी आपने कैलकुलेट किए हैं, 2010 केसेस. तो 3 के लिए केसेस फॉर 3, सम इक्वल्स टू 3. दैट इज अ सिंगल केस 1 1 1, एक केस होगा. सम इक्वल्स टू 4. 4 के लिए जो होगा 1 1 2 या 2 1 1 जो भी आपका है 2 1 1 और इनका आपस में अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 वेज. ये भी ठीक है. सम इक्वल्स टू 5. सम 5 की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें केस कैलकुलेट करना होंगे और ये कहता हूँ मैं 3 रखता हूँ तो 3 1 1 अरेंजमेंट इज ऑल्सो डन
3 factorial divided by 2 factorial, fine. 3 1 1, then 2 2 1. 3 ways are there. और कुछ नहीं, और कुछ नहीं हो सकता. तो गेटिंग टोटल ऑफ एटमोस्ट 6, ओके, सम इक्वल्स टू 6, उसको हम नहीं कैलकुलेट कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है. दोज आर 10 केसेस. तो ये टोटल कितना हो गया? एटमोस्ट 6, मैक्सिमम 6, 6 से कम 6 5 4 3, उससे कम हो नहीं सकता. तो 10 प्लस 3 13 प्लस 3 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटमोस्ट 6, ट्वेंटी अपॉन 216. लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, कैन यू थिंक ओवर एटलीस्ट 6, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया आपको कि मिनिमम 6 है. तो मिनिमम 6 के केस में सम 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो काफी दिक्कत वाला काम रहेगा. तो कुछ शॉर्टकट हो सकता है क्या? यस, क्या शॉर्टकट हो सकता है? 216 तो टोटल केसेस थे आपके, और टोटल केसेस में सम 3 से लेकर सम 18 तक, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, सम 3 से लेकर सम 18 तक के सारे केस आ गए. जब आपने कहा सैंपल स्पेस इज ऑफ 216, तो 216 आर द टोटल केसेस जब सम 3 से लेकर सम 18 है, सब कुछ है. अब मुझे चाहिए एटलीस्ट 6 और उससे हायर. तो मुझे क्या सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए? तो जो यहां पर जब फेवरेबल स्पेस की बात की जाएगी, यस 216 तो टोटल केसेस हैं, और 216 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं. इन 10 को मत उड़ा देना, क्योंकि अब की बार सम 10 चाहिए, सम 6 चाहिए हमें. सम 5 नहीं होना चाहिए, सम 4 नहीं होना, सम 3 नहीं होना. 3 प्लस 3 प्लस 3, राइट, एंड 1. यस, ये 10 कैसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? 216 माइनस 10 206. तो बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, that will be equals to 206 divided by 216. तो सभी सॉल्व कर लिए हमने, और आसानी से कर लिया. एटलीस्ट 6 या एटमोस्ट 6 या टोटल ऑफ 6. Arrangement based questions are there in class 11 for probability. Now the question is, an integer is selected from number 1 to 50, including 1, including 50, and an integer is selected from number ranging from 1 to 50, and आपसे पूछा गया what is the probability of getting a number which is multiple of 2 or 3 or 10. Probability of getting a multiple, that ticket, yeah, that number is a multiple of 2 or 3 or 10. 2 और 3 और 10. आपने जब ऑब्जर्व करना चालू किया, 50 नंबर से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. आपने ऑब्जर्व किया 2 के मल्टीपल कितना होना है, 3 के मल्टीपल कितना होना है, 10 के मल्टीपल कितना, आपने आसानी से देखा. लेकिन तुरंत आपको समझ में आया कि देर आर सम एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, 3 and 10, and as well as 2 and 10, and there are some elements which are common to all of 3. तो जो तुरंत आपके दिमाग में बात आना चाहिए, और वही आना चाहिए, that is the reason that Venn diagrams are discussed. EBC मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 10. 2 के मल्टीपल होना, 3 के मल्टीपल और 10 के मल्टीपल. सबसे काम करते हैं. P ऑफ A मतलब मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ है? मल्टीपल ऑफ 2. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर मल्टीपल ऑफ 2? तो मल्टीपल ऑफ 2 की बात की जाएगी तो 25 नंबर्स आर देयर. 25 बाय 50 लिख दें बिना कोई दिक्कत के. 25 C1 divided 50 C1, 25 by 50 1 by 2. P of B multiple of 3
मल्टीपल ऑफ 3, 16/50, 8/25 या 16/50 रखिए उसको. एंड P ऑफ C मल्टीपल ऑफ 10, 5/50 और 1/10. हमें जो कैलकुलेट करना है या 2 का मल्टीपल हो या 3 का मल्टीपल हो या 10 का मल्टीपल, whether it is multiple of 2 or 3 or 10, you'll have to take care. P of A union B union C is required here, and A union B union C, that will be equals to PA plus PB plus PC minus of P of A intersection B minus of B intersection C minus of P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C. Yes. P A P B P C कैलकुलेट किया. P ऑफ A इंटरसेक्शन B बता दीजिए आप मुझे. P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ ऐसे टिकट्स या ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल है. 2 का मल्टीपल एज वेल एज 3 का मल्टीपल, मतलब 6 के मल्टीपल, और 6 के मल्टीपल 8, 8/50. ठीक सोचा आपने. P ऑफ A इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C की बात करेंगे 2 के मल्टीपल एज वेल एज 10 के मल्टीपल, ऑल 5, 5/50. और P ऑफ B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C की बात करेंगे तो 3 का मल्टीपल या 10 के मल्टीपल, ओनली 1, 30. सही सोच रहे हैं. 1/50. एंड देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो 2, 3, 10, only one number is there which is 30, 1/50. You have to simply place those values there. Formula is known to you. कितना आ रहा रिजल्ट? 33/50. Perfect. Now let's take a problem based on the probability directly from your NCERT book. The question is, the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. Probability of passing neither of the two is 0.1. Probability of passing the English examination is 0.75, and probability of passing the Hindi examination is been asked. So probability that the student will pass final examination in both Hindi and English, H intersection E. Probability that the student will clear both the examination, H intersection E, is 0.5. One more information is given that the student will pass in neither of the two, दोनों में फेल हो जाने वाला है, उसकी probability 0.1 है. P of H bar intersection E bar या H complement intersection E complement, हिंदी में भी फेल, हिंदी इंग्लिश में भी फेल, और ये दिया गया है 0.1. Yes, that question is there on the Venn diagram. Simply 2 के लिए हमने 3 की बात करी है. Probability of passing the English examination is 0.75. इंग्लिश में पास हो जाए 0.75, और आपको रिक्वायर्ड है what is the probability that the student clears the Hindi examination. What do you suggest? As far as the Venn diagram is there, ये रहा Venn diagram, H E, H intersection E. Yes. देखो दोनों में फेल हो जा रहा है, ये गिवन है 0.1, क्या लिख सकते हैं, और दोनों में पास हो रहा है 0.5, ये तो H इंटरसेक्शन E दैट इज गिवन टू यू, और दोनों में फेल है, तो दोनों में फेल है H बार इंटरसेक्शन E बार. नाउ मतलब इस
इन दोनों में नहीं आएगा, ना हिंदी में क्लियर कर रहा है, ना इंग्लिश में क्लियर कर रहा है, ना दोनों में. आई कैन राइट इट. चेक करिएगा प्लीज. इज दैट करेक्ट? क्योंकि H यूनियन E क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाउ कैन यू रिप्रेजेंट H यूनियन E? H यूनियन E is nothing but this complete, that is H यूनियन E. अब वो तो आपसे कहा गया दोनों में क्लियर नहीं है, दोनों में क्लियर नहीं है तो इसका मतलब इस जोन में है ही नहीं. 1 माइनस, ठीक है ना? I can also write probability of H union E in fact represents probability of pass in at least one of the two exams. कम से कम एक एग्जाम में क्लियर हो. P of A union B क्या समझते हो आप? At least one of the two, A में, B में या दोनों में. तो P of H union E is nothing but 1 minus H bar intersection. That will be 1 minus 0.1. That will be 0.9. कम से कम एक में पास होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.9 आ गई. हिंदी में, इंग्लिश में ये कम से कम एक मतलब ये पूरा जो मैंने आपको शेड किया है दैट इज H यूनियन E. H यूनियन E विल बी इक्वल्स टू P ऑफ H. अब कहाँ दिक्कत है? प्लस P ऑफ E माइनस ऑफ P ऑफ H इंटरसेक्शन E. ठीक. 0.9 इज इक्वल्स टू 0.5 point P of H is for you to find out. It is 0.75 minus of, दोनों में पास हो रहा है 0.5. So probability of pass in Hindi examination is going to be 0.9 minus 0.25 जो कि हो रहा है 0.6. अलग अलग रिजल्ट्स आ गए थे छोटे से, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए. देख लीजिए. PNC based question, a word is given and it is been asked that a letter is selected at random from that word. और आपसे पूछा गया probability that the letter, that selected letter is a vowel और दूसरा selected letter is a consonant. क्या अप्रोच होगी? Probability of any event is clearly going to be favorable space upon sample space. तो clear है. So what is the sample space here? Selecting a single letter from this word. Selection करना है आपको sample space. What is that going to be sample space? Sample space क्या होगी? 13C1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letters are there. आप किसी एक को select करेंगे. सिंपल सा कार्यक्रम. इस बात की प्रोबेबिलिटी है भैया वॉवेल है. हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर? एक सिंगल लेटर सिलेक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. 6 वॉवेल्स आर देयर. 6 में से एक कोई भी सिलेक्ट करो आप. और एक और दूसरी बात है कि आप डायरेक्टली इसको कंसोनेंट के लिए 7C1 डिवाइड बाय 13C1 लिख सकते हैं. 7 by 13. यू कैन ऑल्सो गो फॉर, भैया वॉवेल नहीं है तो कंसोनेंट होगा 1 minus 6 by 13. दैट विल ऑल्सो बिकम 7 by 13. अच्छा ये बताओ, थोड़ा सोचना कि एक, अच्छा ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होंगे? ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट दैट द लेटर इज वॉवेल. ऑड्स इन फेवर, हाँ 6:7. ठीक. और कंसोनेंट के लिए इट विल बी 7:6. ठीक है, क्लियर है. अब थोड़ा सा ऐसा सोचिएगा कि अगर 2 लेटर सिलेक्ट करना होते तब क्या होगा? सेम रिपीटेशन वगैरह कुछ? चलिए क्लैरिटी सोचिए जरा. नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे अर्लियर इट वाज अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड. सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम दैट वर्ड.
और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट सिंगल लेटर इज बीइंग वॉवेल एंड कंसोनेंट। अभी पूछा गया आपसे कि 2 लेटर सिलेक्ट किए गए, तो वो वॉवेल या कंसोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों वॉवेल्स हो और दोनों कंसोनेंट्स हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी। अगेन ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दैट क्वेश्चन इज इन अ रिले रेस, ये एग्जांपल है, इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स, देयर आर 5 टीम्स ए बी सी डी ई, ये 5 टीम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी फिनिश फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश। दूसरा सवाल है ए बी सी फर्स्ट 3 टू फिनिश, पहली 3 टीम में से होगी फिनिश करने वालों में से। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, आपकी बुक में कुछ अलग स्टाइल में दिया, मैं कुछ अपनी बात तरीके से समझा सकता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि जो पहला क्वेश्चन है 5 में से उसने कहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन फिक्स है। पहली पोजीशन पे, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पोजीशन पे ए हो, सेकंड पोजीशन पे बी हो, थर्ड पोजीशन पे सी हो, फिक्स है ऑर्डर, यहां पर आप चेंज नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड। दूसरे सवाल में ये कहा गया है कि ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश। फर्स्ट 3 टू फिनिश का मतलब है उनमें ऑर्डर चेंज हो सकता है, ए बी सी बी ए सी सी ए बी, वो सारे पॉसिबिलिटीज हैं यहां पर। बस ये जरूरी है कि ए बी सी में से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड होना चाहिए। तो अब इन दोनों सवालों को समझे हम, टेकिंग क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, पर फिर भी सोच के करना होगा आपको, ऐसा बहुत ज्यादा आसान समझ के करोगे गलत रिजल्ट आएगा, बेकार है। सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, सैंपल स्पेस देयर आर 5 टीम्स, देयर आर 5 टीम्स, सैंपल स्पेस आपने कहा दोस कैन बी अरेंज्ड, है ना, 5p5 वे से आप उनको अरेंज कर सकते हो। आप ठीक सोच रहे हैं, यस यू कैन राइट 5 फैक्टोरियल देयर, दैट इज 120। ए बी सी डी ई आपस में अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, भाई रिले रेस कितने तरीके से फिनिश हो सकती है, तो 120 वेज से फिनिश हो सकती है, क्योंकि भाई रेस में किसी का भी कुछ भी ऑर्डर पे आ सकते हैं। सैंपल स्पेस में तो ऑल पॉसिबिलिटीज आर टेकन केयर ऑफ दैट, तो सारी पॉसिबिलिटीज में 5 फैक्टोरियल वे से आप उनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है, पहला केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, आपकी रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एबीसी तो फिक्स है, उनका कुछ नहीं हो सकता, वो तो पहली 3 पोजीशन पे 3 लोग फिक्स हैं, ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी, थर्ड पे सी। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ की अगर बात की जाए दैट्स नॉट गिवन, आपको एबीसी का कहा गया है, तो फोर्थ और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डी और ई हो सकता है, या फिर ईडी भी हो सकता है, ठीक बात है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आउट ऑफ 120, समझो इस बात को, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ए, सेकंड पोजीशन पे बी, थर्ड पोजीशन पे सी फिक्स है, उसको तो आप अरेंज नहीं कर पाओगे, करना ही नहीं है आपको, ये तो समझ में आना चाहिए। और डी ई डी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट फेवरेबल स्पेस 2 आ रहा है ना सभी को समझ में, डिवाइडेड बाय 120, 1/60। और सेकंड की बात करें, अब सेकंड में क्या कहा गया, सेकंड में कहा गया ए बी सी आर फर्स्ट 3 टू फिनिश, मतलब डेफिनेटली उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, लेकिन यह तय है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में से ए बी सी में से ही कोई रहने वाले हैं, है ना। मतलब ये भी तय है कि फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे डी ई या ई डी होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर ए बी सी होने वाले हैं, यस।
हाउ कैन यू अरेंज? यस, फेवरेबल स्पेस। फर्स्ट 3 पोजीशन पे 3 लोग, लेकिन चेंज हो सकता है। सो फर्स्ट 3 प्लेसेस पे 3 पर्सन्स या 3 टीम्स, वो चेंज हो सकता है। उनके पॉसिबल अरेंजमेंट की बात करूंगा 3 फैक्टोरियल वेज इनटू डी। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल है ही, होगा ही होगा। क्योंकि हम वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल 5। आपकी जो बुक में जो गिवन है एग्जांपल है ये, उन्होंने फर्स्ट 3 को लेते हुए काम किया है, बट ठीक है हमने सबको लिया। तो फेवरेबल स्पेस 6 into 2 12, probability of that event 12 by 120 1 by 10, that is the result. One more question from NCERT, that there are 3 letters and 3 addressed envelopes are there, and each envelope is containing only 1 letter. आपसे पूछा गया है find the probability that at least 1 letter is there in the right envelope. So 3 letters and 3 envelopes. 3 envelopes. Addressed envelopes are there, जो कि 1 लेटर को कंटेन करेंगे, and 3 letters are there. 3 letters and 3 envelopes. ठीक। अभी आपसे कहा गया है कि एटलीस्ट 1 लेटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज देयर इन द करेक्ट एनवेलप। कम से कम 1 लेटर सही एनवेलप में जाए। देखो, और सोच समझ के करने का। जहां तक कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज या सैंपल स्पेस की बात करूं, तो 3 लेटर्स एंड 3 एनवेलप्स, तो 3 फैक्टोरियल वेज से आप उसको अरेंज कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल विच इज 6। ये 3 लेटर्स हैं जो ABC को लिखे गए हैं, और ये 3 एनवेलप्स हैं जो ABC के लिए। कम से कम 1 लेटर ठीक एनवेलप में। 2 तरीके से बना सकते हैं आप उसको, या तो आप केसेस बना लें, 1 लेटर करेक्ट एनवेलप में, फिर 2 लेटर्स करेक्ट एनवेलप में, और फिर 3 लेटर्स करेक्ट एनवेलप में। एक तो ये हो गया। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज तो आपको ठीक है, ऐसे तरीके जिसमें एक भी लेटर प्रॉपर प्लेस पे नहीं जाए। 1 माइनस करोगे तब भी आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं जरा। एटलीस्ट 1 लेटर इज इन द करेक्ट एनवेलप। तो पहला केस, 1 लेटर इन करेक्ट एनवेलप। एनीबडी कैन सजेस्ट मी? 1 लेटर करेक्ट एनवेलप में गया है। 1 लेटर अगर करेक्ट एनवेलप में गया है, तो बाकी जो दोनों लेटर्स हैं वो गड़बड़ हो गए, इंटरचेंज हो गया, यही हुआ। मान लीजिए A प्रॉपर प्लेस पे गया है, ये B और C के लिए था, लेकिन इसमें गया C का और इसमें गया B का। पर ऐसे कितने केस होंगे? एक प्रॉपर प्लेस पे 2, एक्चुअल में इट इज नोन टू बी डीरेंजमेंट। एक प्रॉपर प्लेस पे गया लेकिन बाकी 2 सही प्लेसेस पे नहीं गया, लेकिन ऐसे 3 केसेस होंगे। कौन से 3 केसेस भैया? A सही पे गया, B और C सही नहीं गए, B सही गया, A और C सही नहीं गए, C सही गया लेकिन A और B सही नहीं गए, राइट? तो 3 केसेस आर देयर। अब हम कहें कि 2 लेटर्स प्रॉपर प्लेस, एटलीस्ट 1 लेटर इन द प्रॉपर प्लेस, इसका मतलब एक करेक्ट प्लेस पे, 2 भी करेक्ट प्लेस पे हो सकते हैं और तीनों करेक्ट प्लेस पे होंगे। चलो देखें, ये समझ में आया कि आपको 3 क्यों लिखा है। एक सही जगह गया तो 2 गलत जगह गए, तो A सही जगह गया तो B और C गलत हो गए, B प्रॉपर प्लेस पे तो C और A गड़बड़ हो गए, C प्रॉपर प्लेस पे तो A और B गड़बड़ हो गए। तो 3 वेज आर देयर। अब हम कहते हैं ये 2 लेटर्स करेक्ट पोजीशन पे गए, ये A और B को एड्रेस थे, A की जगह A गया, B की जगह B गया। लेकिन दोस्तों अगर 2 सही प्लेस पे जाएंगे तो तीसरा जाना ही है।
तीसरा जाएगा ही जाएगा, कहाँ जाएगा वो। तो दो अगर करेक्ट प्लेस पे हैं तो तीनों करेक्ट प्लेस पे हैं। ऐसे कितने तरीके होंगे? ऐसा एक ही तरीका होगा, ऐसा एक ही तरीका। भाई दो करेक्ट प्लेस पे गए तो तीसरा जाना ही है, ठीक है ना। तो देयर इज ओनली वन वे देयर, और तीनों करेक्ट प्लेस पे हैं वो तो दैट इज ऑलरेडी देयर। दो करेक्ट प्लेस पे हैं तो तीनों करेक्ट प्लेस पे हैं ही, ऑलरेडी हैं, ठीक है। सिंगल वे इज देयर। टोटल कितने हो गए? 4। दैट इज द फेवरेबल स्पेस, है ना। 1 लेटर, ये है 2 लेटर, लेकिन 2 लेटर इनकरेक्ट तो तीनों करेक्ट होंगे, तो एक ही केस होगा। इन ऑल 4/6, 2/3। लेकिन आप कोशिश करिएगा, देखिए तो थोड़ा सा आसानी से हो गया, आप इसी क्वेश्चन को करिएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ 3 लेटर्स इसको 4 लेटर्स और 4 इनवेलप्स का केस बनाइएगा, मजा आएगा। और वो भी बन जाए तो 5 लेटर्स 5 इनवेलप्स का करिएगा। देन यू कैन थिंक ऑफ 6 लेटर्स एंड 6 इनवेलप्स, और उतना काफी है।